Good morning, students. Today I am going to start your second chapter from your supplementary reader. I'm going to continue your second chapter from your supplementary reader. This is my third video of this chapter, The Adventure of Toto. Page number 9. Here, grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. Toto and Nana never became friends. Some difficult word. One difficult word is that in this paragraph, that is haunches. Haunches means back of the animal. Grandfather hit Nana on the back in order to stop it. Nana jumped back with a jerk and Toto was dragged along with her. Because Nana was not friendly with Toto, what the grandfather did here? He just slapped Nana on his back in order to stop what he is doing. But what happened? Nana jumped back with a jerk, with a great pull. What happened? He took with him Toto also. But both never became friends here. Next paragraph, a great treat for Toto during cold winter evening was a large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand and then gradually step into the bath. First one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he would to the kitchen fire in order to dry himself. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with the bath. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. What happened here? क्या हुआ अब इसमें? अब जो ठंड का जब सीज़न था, ठंड का जब मौसम था, टोटो को सबसे अच्छा क्या लगता था? सबसे अच्छा लगता था गर्म पानी से नहाना. अब वो क्या करता था? He would pretend to be selfish and before starting his bath, he would check the temperature of water. अब वो क्या करता था? वो पानी में जाने से पहले पानी को पहले चेक करता था कि कितना गर्म है, और फिर वो कैसे उनके जैसे कॉपी करता था, नरेटर जैसे ही कैसे करता था? ही वुड कॉपी द राइटर एंड स्टेप्ड इनटू द टब 1 feet एट द टाइम. अब वो नरेटर को कॉपी करता था जैसे वो करते थे, बिल्कुल कैसे मंकी जैसे ही होते हैं ना, जैसे हम करेंगे वैसे ही वो वैसे ही वो एक्ट करेंगे. तो वो भी ऐसे ही एक्ट करता था. पहले एक पैर रख के देखता था, फिर दूसरा, और फिर फाइनली ही वुड सिट इन द वाटर. और जब क्या करता था? तब तक पानी ठंडा नहीं हो जाए तब तक वो उस पर ही बैठकर नहाता रहता था. और जैसे ही पानी ठंडा हो गया, वो उस टब में से बाहर निकलकर किचन की तरफ चला जाता था अपने आप को ड्राई करने के लिए, क्योंकि वहाँ फायर बर्न होती थी, तो वो उसके पास बैठ के अपने आप को सुखा लेता था. मगर एक बार क्या हुआ? टोटो गॉड, अब क्या होता था इस प्रोसेस के दौरान? अगर कोई भी उसको देख के हंस लेता तो वो क्या करता? Toto, annoyed if he was laughed upon, he would get hurt and then refuse to take bath. वो उसको नाराज हो जाता और वो नहाने से मना कर देता. The writer recollects an incident when Toto had almost boiled himself. एक घटना और राइटर यहाँ पे बताना चाहते हैं कि एक बार टोटो ने अपने आप को ही जिंदा उबाल रहा था, अपने आप को ही गर्म पानी में, शायद ऐसा कुछ हुआ था. वो इंसिडेंट हम आगे इस पैराग्राफ में देखेंगे. A large kitchen kettle had been left on the fire to the boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. This was just for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a bit, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. Hauled him means pulled him out. Difficult word here in this paragraph.
what happened? We are going to see the explanation here. In a large kettle, water was boiling on the stove. एक बार क्या हुआ, किचन में चाय बनाने के लिए जो केटल है उसमें पानी बॉईल हो रहा था, और उस पानी बॉईल हो रहा था जो पानी केटल में, उसको टोटो ने देख लिया और कुछ नहीं था उसके पास करने के लिए, तो शायद उसने कहा कि ये अच्छी चीज़ है कि बाहर ठंड लग रही है तो चलो इसके अंदर हम बैठ जाते हैं। टोटो क्लाइंब अप हुआ स्टोव पर, और उस केटल का लिड जो है वो अलग हटा दिया और उसने सोचा कि मैं चला जाता हूँ अंदर, मगर वो क्या हो, नीचे से बर्निंग स्टार्ट था, प्रोसेस स्टार्ट था केटल में वाटर बॉईल करने के लिए, चाय बनाने के लिए पानी उबालने के लिए रखा था। वो जब गया अंदर तब शायद उसका टेम्परेचर इतना गर्म नहीं था, नॉर्मल रोज़ उसके नहाने जितना ही टेम्परेचर था उस पानी का, तो वो चला गया उस केटल के अंदर। जैसे जैसे हीटअप होने लगा, बॉयल होने लगा, उसे गर्मी का एहसास हुआ, तो बाहर आके पीप आउट होता है कि बाहर निकले, मगर बाहर फिर उसे ठंड लगती है, तो वो क्या करता है, वो वापस उस केटल में अंदर चला जाता है। धीरे धीरे टेम्परेचर रेज होता गया, तब वो हॉपिंग करता गया अंदर, बिल्कुल उछल रहा था पानी के अंदर, क्योंकि पानी का टेम्परेचर जो बॉयल ज़्यादा होता जा रहा था। इतने में क्या हुआ, ग्रैंड मदर आ गई बाहर से और उन्होंने देखा, तब उन्होंने क्या करा, टोटो kept on jumping in the kettle for a while. It was when the writer's grandmother arrived that she took half-boiled monkey out of the kettle. तब फिर ग्रैंड मदर के प्रयास से ग्रैंड मदर ने उसे उस केटल में से बाहर निकाला। जब उसने देखा, उन्होंने देखा कि वो पानी में आधा उबल चुका था, बॉयल हो चुका था, तो अपने आप को उस इंसिडेंट में शायद वो जला ही देता, ऐसा वो राइटर को इंसिडेंट याद आता है, उसके एडवेंचर, उसके मिस्चीवियसनेस के बारे में यहाँ पे वो बता रहे हैं राइटर। नेक्स्ट पैराग्राफ, इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन स्पेशली डेवलप्ड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अगर ब्रेन में किसी के पास अगर ये खुराफाती दिमाग है, तो सबसे ज़्यादा ही खुराफाती दिमाग किसके अंदर है, टोटो के अंदर है, ऐसा यहाँ पर राइटर लिखते हैं। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस वेन एवर of my aunts came near him. He made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. और कई चीज़ें वो फाड़ता था, स्पेशली उनकी जब आंट आती थी उसके पास आने की कोशिश करती थी, तो वो पूरे अपने प्रयास से क्या करता था, उनकी ड्रेस खींचता था और उसे टीयर अप कर देता था, तोड़ देता, फाड़ देता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, वन डे at lunchtime a large dish of pulao stood in the center of a dining table. He entered the room to find Toto stuffing himself with rice. अब एक दिन क्या हुआ, एक और टोटो की मिस्चीफनेस के बारे में यहाँ राइटर बताते हैं। एक दिन डाइनिंग टेबल पर पुलाव का बहुत बड़ा कंटेनर रखा हुआ था सर्व करने के लिए। उसी समय टोटो आ जाता है और वो अपने आप को उस पर पूरा बिखेर लेता चावलों के साथ अपने आप को अंदर। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड द टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। दादी आई और तुरंत तो उस टोटो पे चिल्लाई और तुरंत उस टोटो ने क्या करा, प्लेट दादी की तरफ फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर in the face. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. अब क्या हुआ, जैसे ही दादी चिल्लाई उस पर, टोटो ने प्लेट थ्रो किया उनकी तरफ और तुरंत आंट वहाँ थी तो उन्होंने पानी उनके चेहरे पे डाल दिया। ग्रैंडफादर आए तो टोटो ने देखा और टोटो तुरंत पुलाव की जो प्लेट लेकर विंडो की तरफ से बाहर भाग गया। He found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arm. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain, and then, in order to spite grandmother who has screamed on him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. अब क्या हुआ, यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड है, कुछ देखें, स्पिट अ डिजायर टू हर्ट, एनॉय और डिफेंड समवन, चैटर्ड द साउंड मेड बाय द मंकी। अब क्या हुआ कि जैसे ही ग्रैंडफादर आए, टोटो वहाँ से भाग गया, एक पेड़ पे जाके, जैक फ्रूट के पेड़ पे जाकर बैठ गया और अपने हाथ में प्लेट लेके ही रखा हुआ था उसने, और जब तक वो खाता रहा धीरे धीरे एक एक दाना, जब तक वो पूरा ख़त्म नहीं हो गया। जैसे ही वो ख़त्म हुआ, उसने क्या करा, अपना गुस्सा दिखाने के लिए ग्रैंड मदर की तरफ उसने वो प्लेट को वहाँ से पेड़ से नीचे फेंका, और जो आवाज़ आई उससे वो बहुत खुश हुआ और उसकी आवाज़ में वो चिल्लाने लगा, मंकी की आवाज़ में चैटर करने लगा।
Next paragraph. Obviously, Toto was not the sort of pet we would keep for long. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. अब क्या हुआ, टोटो इस टाइप का पेट नहीं था कि उसे हर कोई रख सके और अफोर्ड कर सके, क्योंकि वो इतना मिस्चीवियस था, इतना लॉस करता था घर के सामानों का, हर समय वो क्या क्या लॉस करता, कोई भी एफर्ट नहीं कर सकता। डिशेस तो होता था, कपड़े फाड़ता था, कर्टन्स, वॉलपेपर्स, बहुत सारे लॉसेस वो करता था। वो ग्रैंडफादर ने फिर रियलाइज़ किया कि इसे हम एफर्ट नहीं कर सकते एज अ पेट रखने के लिए, तो उसने टांगा ड्राइवर को वापस ढूंढा और उन्होंने टोटो को उसे वापस दे दिया। कितने में? 3 रुपीज़ में उसे वापस, उसी टांगा ड्राइवर को टोटो को वापस दे दिया। तो हमने देखा कि कैसे एडवेंचरस था टोटो का यहाँ ग्रैंडफादर के साथ एज अ पेट उनके प्राइवेट जू में रहना। फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो इनके साथ नहीं रह सकता, इतना मिस्चीवियस था, इतना नॉटी था कि उन्हें उसे वापस उसी व्यक्ति को सोल्ड करना पड़ा, दे देना पड़ा जिससे उन्होंने खरीदा था। उन्होंने 5 रुपीज़ में खरीदा शायद और 3 में उसे वापस दे दिया। तो ये जो चैप्टर्स हैं आपके सप्लीमेंट्री रीडर्स की, वो स्टोरी राइटिंग्स हैं। आप इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपको स्टोरी राइटिंग आइडियाज़ आएगी कि हाउ टू राइट अ स्टोरीज। So you can grasp ideas from the supplementary reader how you can write the stories. Hope you understood the chapter. Thank you and complete all the textbook question answers.